So let's continue with a difference of two complex numbers, that is subtraction. So given any two complex numbers, you can easily subtract them like z1 minus z2. If given 6 plus 3 iota is your z1, suppose minus 2 minus iota, that is your z2. So the way you do in integers, the same way you will do is 6 plus 3 iota minus उसको करोगे तो आप क्या हो जाएगा -2 प्लस आयोटा. गॉट इट. सो उसने ये जो है क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा सॉल्व करने में लग दिया. अदरवाइज नथिंग इज देयर. 6 प्लस 3 आयोटा -2 प्लस आयोटा, यू विल डू देम बाय इंटीजर्स द वे यू डू इन इंट. 6 minus 2 is what? 4, and plus 3 iota plus iota is your 4 iota. So similarly he has shown it other way also. Do minus iota minus 6 plus 3 iota करना. So things will be more clear to you when I'll do with you questions. Now come to multiplication of two complex numbers. So I've shown it here with it. Multiplication of two complex numbers. Suppose I have taken two complex numbers, c plus 5 iota and 2 minus 6 iota. The way you do in your integers कि ब्रैकेट्स में आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हो एग्जैक्टली वैसा ही आप मल्टीप्लाई करोगे. 3 I have kept outside, 2 minus 6 iota plus 5 iota I have kept out. So 2 minus 6 iota in the bracket. Now you can see the calculation. 6 minus 18 iota plus 10 iota and minus 30 iota square. What do we get? 6 minus 18 iota plus 10 iota like terms, so it becomes minus 8 iota. बेटा अब जो minus 30 iota square था, iota square तो क्या है? -1, so I have written here. So minus 30 into -1 becomes plus 30. तो 6 plus 30 are like terms हैं. Without iota terms, so they will be added. So 36 minus 8 iota will be the answer. Now few properties of multiplication that are given in the book. I am just reading it from the book. So closure property, again, what is this? The product of two complex numbers is a complex number. You have just seen in the example also. Commutative law, again, that z1 into z2 is equal to z2 z1 hota hai. Associative law, again, it holds. And the existence of multiplicative identity, that is, if you multiply any number with 1, any complex number with 1, so it makes no difference, it becomes z into 1 is z. Now the existence of multiplicative inverse, this is very much important. This I'll just discuss later on. Ye fifth property of multiplication is very much important. What is this multiplicative inverse? So this I'll just discuss in the video later on. Then rest is your distributive law. This is again you people have already done, so no, that not that much important. Now come to division of two complex numbers, which I have taken it here better from my side. So division of two complex numbers, let z1 be 6 plus 3 iota and z2 is 2 minus iota beta. So this is z1 upon z2 I have written. And then to note one thing beta, अब complex numbers में आप always remember ये डिनोमिनेटर में आयोटा टर्म आ गई. दिस इज 2 माइनस आयोटा. दिस इज एक्चुअली 2 माइनस आयोटा. नॉट सी, नोट वन थिंग, never ever we keep iota term in the denominator in case of complex numbers. complex numbers में हम iota वाली term नहीं रखते. उसके लिए हम लोग rationalize करते हैं. the way we used to rationalize in our 9th 10th classes में rationalizing आपको सिखाई हुई है. I'm showing you how. तो बेटा वहाँ पे जैसे rationalize करते थे ना, rationalize करोगे तो आपका iota वाली term डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो जाएगी. सिंपल कोई रियल नंबर रह जाएगा. सो आई हैव शोन इट हाउ. सो सी हियर, रैशनलाइजिंग के जैसे ही आप यहाँ करोगे 6 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू वॉट, 2 माइनस आयोटा था. तो हम लोग जब रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, बीच वाला साइन, बट नोट साइन बीच वाला चेंज करने का मतलब इमेजिनरी टर्म वाला साइन आप चेंज करोगे. सो दिस इज 2 माइनस आयोटा. So it becomes 2 plus iota into 2 plus iota. ऊपर नीचे करा इसको. Now these two numbers, complex numbers, will be multiplied. I have shown it here. Then this is what, a minus b into a plus b. तो वही आइडेंटिटी लगेगी बेटा, a minus b into a plus b वाली, a square minus b square. So I have shown it here. सो बी क्या है, आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर होगा. ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कराए ब्रैकेट. सो दिस वी गेट 3 आयोटा स्क्वायर. जहाँ आएगा तो वो बाद में -3 बन जाएगा. दीज आर लाइक टर्म्स, सो दे बिकम 12 आयोटा. दिस इज 12 minus 3 9 plus 12 आयोटा. और नीचे क्या लगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर. बट आयोटा स्क्वायर इट सेल्फ इज वॉट, -1. सो 4 माइनस ऑफ -1 is +1. सो 9 plus 12 आयोटा इज अपॉन 5 इज योर आंसर. गॉट इट. नाउ this is all about division. Now come to powers of iota beta.
तो पावर्स ऑफ आयटा इज इम्पॉर्टेंट. सपोज आपको आयटा रेज़ टू पावर 7 सॉल्व करने को बोल दें, तो बेटा आई हैव शोन टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि आयोटाज वैल्यू इज √-1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1. तो आप जो भी आपको यहाँ पे दे दें, आप उसको आयटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाओ. पहले आयटा 7, हाउ कैन आई राइट इट एज आयटा स्क्वायर की पावर 3, इट बिकम्स 2 3 = 6, बट आई वांट टू हैव 7 चाहिए, तो एक आयटा जो बच गया वो हमने सेपरेट लिख दिया. सो नाउ व्हाट डज इट बिकम, आयटा स्क्वायर इज व्हाट -1. -1 का क्यूब तो क्या होता है बेटा, -1 ही होता है. और ये एक आयटा बचा, -1 इंटू आयटा इज माइनस आयटा, डेट इज आयटा रेज़ टू पावर 7 इज माइनस आयोटा. सिमिलरली आई हैव, एक तो मैंने ऑड पावर के साथ लिया, एक आई हैव टेकन विद इवन पावर, आयटा रेज़ टू पावर 24. अभी हाउ कैन यू राइट इट एज आयटा स्क्वायर की फॉर्म में ही जाना, आयटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 12 बन गया 24. नो आयटा स्क्वायर इज व्हाट -1. सो -1 की पावर जब 12 होएगी तो -12 टाइम्स लिखा जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा, सो 1. सो नोट whenever power is your in the plus, तो आपका फाइनल आंसर 1 ही रह जाएगा. आप किसी और को भी चेक कर सकते हो, लाइक आई एम गिविंग यू आयटा 38, हाउ कैन यू राइट आयटा स्क्वायर, अच्छा, और पावर इज व्हाट 19. अभी यहाँ क्या है, दिस इज पावर के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ 12 पावर्स थी स्क्वायर की, तो इसलिए यहाँ पे +1 आंसर आ गया. आयटा 38 है तो आयटा स्क्वायर पावर इज 19, आयटा स्क्वायर -1 की पावर 19 है, तो आंसर विल बी व्हाट -1. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर पावर, दिस पावर, एंड यहाँ पे आप ऑलवेज चेंज करोगे आयटा स्क्वायर के ही साथ, और फिर आप डिपेंड करता है कि आपका आंसर, अगर ये पावर आपकी पॉजिटिव है स्क्वायर की, सॉरी पॉजिटिव नहीं, इवन है, तो आंसर विल बी +1. इफ दिस पावर ऑफ आयटा स्क्वायर इज ऑड, योर आंसर विल बी -1. सिमिलरली यहाँ पे अगर पावर ऑड थी तो अपना आंसर इज माइनस आयोटा. गॉट इट. सो नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज 2-3 थिंग्स आई हैव टू डिस्कस हियर. The modulus and conjugate of a complex number, and one is left is your multiplicative inverse beta. Now what is this modulus? First of all, I have discussed modulus. Let z is equal to a plus iota b, then modulus of z is denoted by this. Remember z के आसपास हमने ये 2 बार लगा दिए, तो modulus of z is denoted by this. और ये होता क्या है बेटा, modulus of z means अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विदाउट आयोटा. यहाँ आयोटा नहीं आप यूज़ करोगे, सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर और आई डेट इज आयोटा को छोड़ के जो आपका पार्ट है उसका स्क्वायर. गॉट इट. थिंग्स विल बी मोर क्लियर. सपोज आई एम टेकिंग यू 2 + 3 आयोटा, आई हैव टेकन जेड. आई सेड जेड बार फाइंड आउट करो. सो व्हाट डू 2 का स्क्वायर प्लस ओनली 3 का स्क्वायर. सो आंसर विल बी व्हाट 4 + 9. सो इट विल बी √13. Mod of z for this is √13. Got it. Then comes to your conjugate. If z is equal to a plus iota b, conjugate of z is denoted by beta z bar. I have shown. So z bar जब आपको लिखा जाए तो it means conjugate. I am talking about conjugate. Z in mod I am talking about modulus of z, that is complex number. Z bar I'll read it at z bar. So it means I am talking about conjugate of complex number. तो conjugate क्या होता है बेटा, अगर z आपका a प्लस आयटा b था तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज a माइनस आयटा b. डेट इज आपने आयटा वाले टर्म का सिर्फ साइन चेंज करा और वो आपका कॉन्जुगेट बन गया. गॉट इट. अगर मैं आपको बोलूँ z इज योर सपोज 5 + 7 आयटा, what is its z bar? You will write 5 - 7 iota. Got it. Now multiplicative inverse, which I have told you कि I'll discuss it in the later, multiplicative inverse of a complex number. अदरवाइज तो बेटा आपको मैं अगर बोलूँ 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है तो आप बोलोगे 1/5, क्योंकि किसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ कि आई विल गेट आंसर 1. सो 5 × 1/5. सिमिलरली अगर मैं a प्लस आयटा b की बात कर रही हूँ तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज डिनोटेड बाय, पहले तो उसका डिनोटेड कैसे करते हैं उसको, z पावर -1, एंड z पावर -1 इज इक्वल टू 1/a प्लस आयटा b. गॉट इट. लाइक 5 का जैसे मैंने बोला 1/5. नो अगेन कैन यू सी दिस इज नाउ डिनोमिनेटर में आपका आयोटा टर्म आ गया. तो मैंने आपको बोला कि आयोटा टर्म तो डिनोमिनेटर में आना नहीं चाहिए, तो z इनवर्स को हम फर्दर सॉल्व करेंगे. तो व्हाट डू 1/a प्लस आयटा b इंटू a माइनस आयटा b अपॉन a माइनस आयटा b. जैसे पीछे क्वेश्चन में आपको टोल्ड यू, ऊपर तो बेटा a माइनस आयटा b हो गया, नीचे क्या हुआ a प्लस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर लगा, तो a स्क्वायर माइनस आयटा b का होल स्क्वायर. सो व्हाट डज इट बिकम,
it becomes z inverse a minus iota b upon a square minus iota square b square. Then it becomes a minus iota b upon a square minus of iota square minus 1 है तो minus of minus 1 b square. So what does it become? A minus iota b upon a square plus b square. So can you see z inverse is equal, अभी मैंने आपको बोला कि z bar is what? कॉन्जुगेट होता है, और कॉन्जुगेट क्या है? हमने तो क्वेश्चन शुरू करा था कि z से a प्लस आइटा b, हमने यही शुरू करा था कि z हमारा a प्लस आइटा b है, तो उसी का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल रहे हैं, तो उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पहुंच गए यहाँ पे. नो a माइनस z, अगर z a प्लस आइटा b था तो बेटा a माइनस आइटा b क्या होता है? अगर z मेरा a प्लस आइटा b था तो a माइनस आइटा b क्या होता है आपको पता? मॉड दिस कॉन्जुगेट ऑफ z. और z बार क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी z का. तो कैन यू सी z इनवर्स आपका a माइनस आइटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया. तो कहना है दैट कि z इनवर्स क्या है? z कॉन्जुगेट अपॉन z का मॉडुलस. गॉट इट? सो दिस इज अप टू हियर. Now you can do exercise 5.1, but I'll take a few examples of exercise 5.1 in the next video. A few not examples, few questions, then you will do all the questions yourself, and problems you will give me later on. And few things I want to discuss with you little bit. See here, ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना. फर्दर ही सेड फर्दर मोर द फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन इजीली बी डिराइव्ड फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स. वी हैव दिस कि अगर z1 z2 का इनटू कर दें दोनों को, और फिर उनका मॉड लें या अलग अलग मॉड लेके इनटू करें, तो यू विल गेट द सेम आंसर. सिमिलरली z1 अपॉन z2 का मॉड या फिर अलग अलग मॉड लेके उनको डिवाइड करें, यू विल गेट द सेम आंसर. सिमिलरली these things will be more clear while doing questions. So exercise 5.1 I'll take up in the next video. Thank you. Have a nice